What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi. Yes, they are units, they are provinces. Put on. Yes. But I ask you, have you forgotten the lesson that Islam taught us 13 centuries ago? And I think you will agree with me that whatever else you may be or wherever you are, you're a Muslim. That you have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. It doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Sindhi. It's yours. You got your central government where every unit and every province is represented. Therefore, if you want to build up yourself into a nation and get rid of this poison, God's sake, give up this provincialism. You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan should be based on pure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism. Brotherhood, equality, fraternity of man, these are all the basic points of our religion, culture and civilization. And we fought for Pakistan because there was danger of denial of these human rights in this subcontinent. After all, the story of Pakistan and its struggle and its achievements is a very story of great human ideals struggling to survive in the face of odds and difficulties. Let us now plan to build and reconstruct and regenerate our great nation. Now is the time, chance and opportunity for every Muslim to make his or her fullest and best contribution and make the greatest sacrifice and work ceaselessly and selflessly in the service of our nation and make Pakistan one of the greatest nations of the world. Pakistan is now great conflict and it can never be undone.
these activists are briefed by that Pasha, Pakistan Software House Association, but still इनके पास इतनी कोई ख़ास आईटी नॉलेज नहीं है। ये कंसर्न रेज करते हैं कि विद दिस फिल्ट्रेशन सिस्टम, नेशनल यूआरएल फिल्ट्रेशन सिस्टम, the speed of the internet will be lowered. एक तज़ीन ने ट्वीट की थी, she said कि the internet speed will be lowered to such extent that it will take ages for a text email to go. However, the reality is कि इस filtration system के through only a millisecond delay, only a millisecond delay will come over the traffic, और वो भी 50 million URLs per 1 millisecond. फिर भी ये लोग इतना कहते हैं कि इससे इंटरनेट स्पीड इफ़ेक्ट होनी है, but this is not so. Chairman PTA has confirmed us that this will not affect the speed of internet anyway. और ये फिल्ट्रेशन सिस्टम लाया ही इस वजह से जा रहा है कि अगर मैनुअल मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप फिल्ट्रेशन करोगे मास लेवल पर, तो दैट विल मैस अप विद द स्पीड. Mainly they speak with this URL filtration system, government would be able to do uncategorized censorship on mass level. Like अगर किसी वेबसाइट पे ज़रदारी के अगेंस्ट कोई क्लिप है, कोई डाटा है, तो गवर्नमेंट वुड बैन दैट इमीडिएटली. सही बात है, गवर्नमेंट कैन बैन दैट, बट at the basic there are some code of conduct that have to be followed before banning a site. गवर्नमेंट के पास कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बाद एक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है दैट कंटेन्स मेंबर्स फ्रॉम पीटीए, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और दे डू द स्क्रूटनी ऑफ एनी वेबसाइट दैट हैज़ टू बी बैंड. और वही प्रोसीजर वेबसाइट को फिल्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू बैन करने से के लिए फ़ॉलो किया जाएगा, जैसा कि मैनुअल मैकेनिज़्म के लिए फ़ॉलो किया जाता है. अगर जरदारी ने आपकी वेबसाइट को बैन आउट करना है तो वो अभी भी कर सकता है. योर resistance to this filtration system is no bad for the government but for the anti-porn efforts of Pukare Pakistan. Their third concern is very hilarious. Miss Fariha Aziz, I think the same is her name, she wrote an article over bolobi.org जिसके एंड में लिखा होता है that she has been awarded by All Pakistan Newspaper Society and she is a well known journalist. जब उनके आर्टिकल पढ़ा तो उन्होंने कुछ टेक्निकल टर्म्स का उसमें जिक्र किया था, and she was saying that with this URL filtration system गवर्नमेंट वुड गेट होल्ड ओवर द इनक्रिप्टेड ट्रैफिक. और जो भी सिक्योर ब्राउजिंग होती है, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग फेसबुक, गवर्नमेंट कैन नॉट ब्रेक इनटू योर अकाउंट. गवर्नमेंट को नहीं पता होगा कि आप कौन से ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हो, आपकी क्या आइडेंटिटी है, आपकी क्या लोकेशन है. लेकिन विद दिस यूआरएल फिल्ट्रेशन सिस्टम गवर्नमेंट वुड गेट दी होल्ड टू द डाटा. ये जब मैंने सवाल अपनी टीम के टेक्निकल एक्सपर्ट्स और कुछ रिनोन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के सामने रखा, दे ऑल हैड अ ग्रेट लाफ, और वो सारे कह रहे थे कि दिस इज़ इम्पॉसिबल. लाइक मिस फरीहा रेफर्ड टू फ्यू टेक्निकल टर्म्स लाइक मैन इन द मिडल अटैक और सर्टिफिकेट रिप्लेसमेंट और डीप पैकेट इंस्पेक्शन. उसमें इफ़ यू टॉक अबाउट मैन इन द मिडल अटैक, उसमें ये होता है कि सेशन हाईजैक कर लेते हैं और जो भी सेंट्रल पर्सन है लाइक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो जो इनिशियल रिक्वेस्ट होती है उसको रिप्लेस करके अपनी रिक्वेस्ट बना के आगे भेजता है, और दैट वायलेट करता है अ बिट अबाउट प्राइवेसी. तो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस यूआरएल फिल्ट्रेशन सिस्टम दैट हैज़ टू बी डिप्लॉयड ओवर द इंटरनेशनल गेटवे, तो वहाँ पे अगर कोई मैन इन द मिडल अटैक करेगा तो दैट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम, क्योंकि वहाँ पे इन पाकिस्तान देयर इज़ अबाउट 120 GB पर सेकेंड बैंडविड्थ रेट. सो उस जगह पे इतनी ह्यूज मास में ट्रैफिक से एक यूनिक ट्रैफिक को निकाल के उसके सेशन हाईजैकिंग करना, उसकी रिक्वेस्ट को रिप्लेस करके अपनी रिक्वेस्ट बना के आगे फॉरवर्ड करना, दिस इज़ इम्पॉसिबल. एंड दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट ऐसी बात सोच रहे हैं. मान लीजिए कि गवर्नमेंट will be able to identify any traffic at a place where traffic rate is about 80 GB per second, or government is thinking to use deep packet inspection for that. सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इफ़ यू आर यूजिंग unsecure browsing via HTTP और FTP और some unsecure protocols, फिर without any URL filtration system government can break into the data. कॉज सिंपल पैटर्न में जाए, दिस इज़ लाइक आपने एक सिंपल पेपर में अपनी लेटर लिखा हुआ हो, आप भेज रहे हो, तो इट्स नो डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग. लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग इनक्रिप्टेड ट्रैफिक, अब आप सिक्योर ब्राउजिंग की टर्म को समझें. व्हाट इज़ दिस? सिक्योर ब्राउजिंग इज़ लाइक आपका एक पेज पे आपने एक लेटर लिखा है, आप
आपने साइट पे एक की बना ली कि अगर मैं ये लिखूंगा तो ये ट्रांसफर होकर इस पे आ जाएगा। लाइक आपने डिफरेंट लैंग्वेज, लाइक अगर किसी को चाइनीज़ नहीं पता और आप उसके थ्रू एक लेटर भिजवा रहे हो तो उसके लिए तो एक बिल्कुल अलग एक इंक्रिप्टेड एक सिक्योर चीज़ है, उसको वो नहीं जान सकता उसको। सिमिलरली गवर्नमेंट कैन नॉट नो अनलेस गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडेड विद द इंक्रिप्शन की। और अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, ट्विटर यूज़ कर रहे हो, जीमेल यूज़ कर रहे हो तो गवर्नमेंट कांट ब्रेक इनटू द सेशन अनलेस गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडेड विद एल्गोरिथम की दैट इज़ यूज्ड टू इनक्रिप्ट दैट। और अगर अभी भी एक्टिविस्ट को ये कंसर्न है कि गवर्नमेंट कैन ब्रेक इनटू, तो यही हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई एजेंट फेसबुक कंपनी के अंदर काम करता हो, वो इंक्रिप्शन की वहाँ से गवर्नमेंट को ला के दे। अदरवाइज either using defect inspection, either using certificate replacement, either using man the middle attack, government can in no way break into the encrypted traffic. Government cannot break into the encrypted traffic. ये इन्होंने simply झूठ बोला है। सवाल ये है कि अगर किसी कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने या टर्की ने सेकुलरिज्म हो के तरक्की की है इम्तियाज आलम साहब से, तो क्या आप ये मुझे बताएं कि इस्लाम को अगर हम एग्जाम्पल बना के तरक्की करें उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इस्लामिक सिस्टम से हम तरक्की नहीं कर सकते क्या? हम उसको प्रिवेल नहीं कर सकते अपनी कंट्री में? मुमकिन नहीं है। देखिए, मुस्लिम दुनिया में 700 साल से अंधेरा है, ना इजाद है, ना किताब है, ना तहकीक है, ना जुस्तजू है, ना लाइब्रेरी है, ना यूनिवर्सिटी है। ये मजहब की बहस हमें उस अंधेरे से निकलना चाहिए मुसलमानों को, उस अंधेरे से निकलना चाहिए और अपने दिमाग खोलने चाहिए। और कुरान पाक में आया है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। अच्छा, एक मिनट। ला इकरा फिद्दीन, सुने, कुरान अपने दीन में कोई जबर नहीं है। ये लोग जो है ना दीन में जबर ला रहे हैं जो गलत है, जो इस्लाम में नहीं है। लेकिन सर कुरान इज अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ। आप मुझे ये बताएं जावेद साहब, एक मिनट रेलेवेंट है जी, रेलेवेंट है। समझता हूँ कि अगर हम मजहब पे बहुत जोर देते रहे, पाकिस्तान नहीं रहेगा, गली गली फसाद होगा और तबाही होगी, मुसलमान गला काटेगा। चलो ठीक और है। पाकिस्तानी स्टेट का और शहरियत का कोई मतलब ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो सेकुलर हो जाए पाकिस्तान, बिल्कुल मुकम्मल नहीं हो सकता जी, राइट। नहीं हो सकता। ख्वाब है इनका, और एजेंडा भी होगा, हो सकता और है, इसके अलावा मुस्तकबिल कोई नहीं, और एजेंडा भी हो सकता होगा। एजेंडा भी है। एजेंडा किसका? ये इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल एजेंडा, ये हम मानते हैं। बात करूंगा मैं अलग से कभी किसी पर, खुल के करें। ये बुला लीजिए, ये बात भी कर लेंगे। ये पोस्ट मॉडर्न एनजीओ जो है ना, जो कॉन्सेप्ट है, इस पे अलग कभी बात कराइए मुझसे। यानी सेफा में तय कर रहे हैं हाँ, बात। मैं ये भी हो जाए। हालांकि जाता हूँ इनके इजलास में मैं।